प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आपने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स पढ़े हैं और आज हम इससे पहले आप उसकी 3 थ्योरम भी देख चुके हैं। आज हम जो थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं वो है ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is cyclic if and only if it has an element of order n। तो सबसे पहले यहाँ हम एक फाइनाइट ग्रुप G डिफाइन कर लेते हैं। इस G का ऑर्डर n यहाँ दिया हुआ है। हमें जो यहाँ प्रूव करना है वो इसे साइक्लिक मानते हुए ये बात प्रूव करनी है, इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। फर्स्ट कंडीशन इज नेसेसरी। तो हम इसके प्रूफ के लिए क्या लेंगे, लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, दिस इज फाइनाइट नंबर। That is, order of G is n। Now मैं बात कर रहा था कंडीशन इज नेसेसरी। सो इन दिस केस G is a cyclic group. So there exists A in G such that this G is generated by A। Also, by above theorem, we know that order of G is order of its generator. So this gives order of A is order of G and order of G is n. This shows that G has an element of order n. So if G is cyclic, then हमें प्रूव करना था कि it has an element of ऑर्डर n। हमने G साइक्लिक लिया और इसमें ये प्रूव कर दिया कि G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। कन्वर्स पार्ट
विलोम के लिए condition is sufficient. So here G has an element of order n. Say A is in G such that order of this A is n. Now we want to prove that G is cyclic. So let H be a group generated by this particular member A. So H is subset of G. Obviously H is the subset of G, and also we know that order of cyclic group is order of its generator. Here H is the cyclic group generated by A. It means here order of H is n because order of A is n. So there is H is the subset of Z and order of H is n. Order of H is n. This gives us G is the G is the subset of H. Yes. Again here n is, this n is order of G. This n is order of Z. ठीक है, दिस n is order of Z. हमने यहाँ प्रूव क्या किया? हमने यहाँ प्रूव किया कि order of H is n, and because order of Z is also n, it means order of H is order of Z. So now we have two statements. First is H is the subset of Z, and second one is order of H equals to order of Z. ये स्टेटमेंट हमें क्या इम्प्लाइज है? This gives G is H, and H, we know that here we already assumed that H is generated by A. H is generated by A. So
This shows that G is generated by A, and hence G is a cyclic. G is a cyclic group. ओके, तो इस थ्योरम का प्रूफ आप इस तरह से दे सकेंगे। ये कंप्लीट प्रूफ यहाँ देखिएगा आप। बिलोंग पार्ट आप देख रहे हैं। जी एन कोटि परिमित ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ए एन है, एच हम जनरेटेड बाई ए ले लेते हैं। क्लियरली एच इज द सबसेट ऑफ जी होगा एंड ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा विच इज एन, और हियर एन इज द ऑर्डर ऑफ जी, एन इज द ऑर्डर ऑफ जी। So order of H is order of G and H is the subset of G gives G equals to H, and H is generated by A which gives G is generated by A, and hence G is cyclic. See? This is our theorem number 4. Now theorem number 5 स्टेटमेंट देखिए आप थ्योरम 5 का। Every infinite cyclic group has two and only two generators. Here cyclic group is infinite. Suppose G order is infinite. Cyclic means G is suppose generated by A. हमें जो प्रूव करना है has two generators. You know, when G is generated by this A, then A inverse also generator of G. So there are two generators A and A inverse. ये इस बात को व्यक्त करता है कि ग्रुप के दो जनरेटर हैं, एक A और दूसरा उसका प्रतिलोम A इनवर्स। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इफ G जनरेटेड बाय A देन इनवर्स ऑफ A आल्सो द जनरेटर ऑफ G. So this shows that there are two generators A and A inverse. But there is a problem that A and A inverse are same if A and A inverse are same,
then there are only one generator. But here this is not possible. Why? If possible, let A and A inverse are equal, which gives by pre-operation A द्वारा प्री ऑपरेट कर दीजिएगा, ये हमें क्या रिजल्ट देगा? A स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज आइडेंटिटी, और ये जो हमें रिजल्ट देगा वो ये शो कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू 2. But we know that order of group G is equal to order of generator. So this gives order of generator G is, order of group G is less than or equal to 2. ये इस बात को व्यक्त कर रहा है कि G में 2 या 2 से कम मेंबर हैं सेट G में. It means G is finite. But given that G is infinite, this is contradiction. कॉन्ट्राडिक्शन का कारण रहा A इक्वल्स टू A इनवर्स मानना. सो वी कैन से दैट A इज नॉट इक्वल टू A इनवर्स. इट मीन्स देर आर टू जनरेटर्स. देर आर टू जनरेटर्स. तो ये पहला पार्ट यहाँ प्रूव होता है कि किसी भी अपरिमित ग्रुप के 2 जनरेटर होते हैं. फॉर सेकेंड पार्ट, ओनली 2 जनरेटर्स. अब हमें ये प्रूव करना है कि केवल 2 जनरेटर होते हैं. लेट M is any integer such that A raised to the power M is the generator of Z. ओके, हम सेकेंड पार्ट में करना सिद्ध चाह रहे हैं कि ओनली 2 जनरेटर्स, 2 से अधिक नहीं होंगे. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2 से अधिक जनरेटर मान लेते हैं. हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि A एंड A इनवर्स आर जनरेटर ऑफ G. 2 हैं. तीसरा हम मान लेते हैं A की पावर M है. A की पावर M को A और A इनवर्स से डिफरेंट करने के लिए हमें यहाँ ये बताना होगा कि M का मान 1 नहीं है, अदरवाइज वो A हो जाता है. हमें यहाँ ये भी बताना होगा कि M का मान -1 भी नहीं है, अदरवाइज वो A रेज़ टू द पावर -1 मीन्स इनवर्स ऑफ A हो जाता है. वो तो हमने ऑलरेडी बता ही दिए है. उनके अतिरिक्त हम तीसरा जनरेटर यहाँ A रेज़ टू द पावर M ले रहे हैं. तो यहाँ ये कंडीशन हम ले लेते हैं. तब क्या होता है, इस स्थिति में 2 से अधिक जनरेटर हो रहे हैं, लेकिन
उसका परिणाम क्या होता है वो देखिए। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाता है। हियर यू नो ए इज द जनरेटर ऑफ जी हमने मान रखा था। अब हमने ए की पावर एम को जी का जनरेटर मान लिया। ए इज द जनरेटर ऑफ जी मीन्स ए इज द मेंबर ऑफ जी। A is the member of G. So, A can be expressed as integral power of A raised to the power n, m. Because A raised to the power m is generator of G, then this A can be expressed as integral power of a raised to the power m. तो हम कह सकते हैं कि a is the member of G, then there exists an integer n such that a equals to a raised to the power m power n. अब देखिए यही सब कुछ है, यही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, और इससे हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त होगी कि जी फाइनाइट नहीं रह जाएगा। देखिए किस तरह से। आप यहाँ ए इनवर्स से इसे पोस्ट ऑपरेट कर दीजिए। ए इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट कर दीजिए। ओके, देन दिस इज after using integral power rules, this will be a raised to the power mn minus 1, okay, and equals to, here this a inverse is identity. A inverse is identity. So this gives order of A is less than or equal to mn minus 1. Again you know, as A is the generator of Z means order of A equals to order of Z. So by this theorem we can write here order of A equals to order of Z is less than or equal to mn minus 1. But mn minus 1 is a finite number. Mn minus 1 is a finite number. It means this set G is finite. This set is G is finite. This is again contradiction. As our assumption is that this is infinite. इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ था, और अगर हम a रेज टू द पावर mn माइनस 1 अगर हम अदर देन 1 और -1 के m और n की वैल्यूज़ मानते हैं तो g का ऑर्डर फाइनाइट प्राप्त होता है। अब एक चीज़ और यहाँ जो समझने की है वो रह गई कि यदि हम m को 1 और -1 से डिफरेंट क्यों बता रहे हैं, तीसरा मेंबर लेने के लिए, और अगर m इक्वल्स टू 1 नो प्रॉब्लम, दिस इज क्लियर, ऑब्वियसली दिस इज क्लियर। तो यहाँ तीसरा मेंबर हम m इज़ नॉट इक्वल टू +-1 के लिए कर रहे थे, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन, g फाइनाइट सेट प्राप्त होता है, बट गिवन दैट g इज इनफाइनाइट इट मीन्स
हमारा जो एजम्पशन था कि तीसरा मेंबर जो जनरेटर है वो यहाँ विद्यमान नहीं होगा. इट मीन्स वी कैन से दैट every infinite cyclic group has two generators and only two generators and only two generators. Okay, so dear students, ये यहाँ आप देखिए थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ जो मैंने आपको समझाया वही दिस इज कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. तो आज हमने ये दो थ्योरम की. इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट थ्योरम लेंगे. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट थ्योरम जो साइक्लिक ग्रुप की बची हुई थ्योरम से वो लेंगे. तैयारी करिएगा, अच्छी तैयारी करें, एग्ज़ाम बहुत निकट है. और वीडियोस को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी.